ہوتی ہے. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اچھا ملکیت تو ہے, اچھا کوئی کسی چیز کا مالک ہو مگر اس کے پاس دبدبا نہ ہو, کوئی اس کے اوپر پریشر بنا لے, اپنے فیصلے کو بدل دے. جیسے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اس آدمی کو تاعمر جیل بھیج دیا جائے. اب جس کے بارے میں یہ فیصلہ بادشاہ نے کیا ہے اس کی بیوی آتی ہے اور بادشاہ کی بیوی سے ملتی ہے, رانی سے. رانی صاحبہ میرے شوہر کو آپ کے شوہر نے جیل بھیجوا دیا ہے, ذرا میری مدد فرمائے. اب یہ رانی راجا کے پاس آتی ہے, کیا جی تم نے ایک آدمی کو جیل میں ڈال دیا ہے, میں کہتی ہوں کہ اس کو جیل سے نکالو نہیں تو میرے قریب نہیں آنا. یہ دیکھو یہ دبدبا ہے, پریشر بنانا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے اوپر کوئی پریشر نہیں بنا سکتا. جی ملکیت کے ساتھ جاہ بھی ہے, دبدبا ہے میرا. اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, اس کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے, ان کو معاف کر دو, ان کو معاف کر دو, ان کو یہ دے دو, ان کو یہ دے دو. اور یہاں استفہام انکاری ہے, یہاں نفی میں جملے کو نہیں لایا گیا ہے. جی لا یشفع عنده الا باذنہ, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الاستفہام اقوی من النفی, اس لیے کہ استفہام جو ہوتا ہے نفی سے اقوی ہوتا ہے. جی ایسا کہا جاتا اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے کوئی سفارش نہیں کر سکتا. یہ جملہ نافیہ ہے, جملہ نافیہ نہیں لایا گیا. یہ کہا جا رہا ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے, ہو تو سامنے آئے. اللہ اکبر, دیکھ رہے ہیں آپ, ایک طریقے کا چیلنج ہوتا ہے استفہام انکاری میں. جی کس کی اوقات ہے, سامنے آئے. اگر ایسا کہا جاتا اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا, جملہ نافیہ ہے. لیکن جملہ نافیہ نہیں لایا گیا, استفہام انکاری لایا گیا. استفہام انکاری جو ہوتا ہے نفی سے اقوی ہوتا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے, اس کو یہ دے دو, اس کو وہ دے دو, اس کو بیٹا دے دو, اس کو بیٹی دے دو, اس کی فلاں مراد پوری کر دو. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے, ہو تو سامنے آئے. یہ مطلب ہے اس کا استفہام انکاری. کیا بات ہے. اچھا تو ایک تو ملکیت ہے, مالک ہے, اور دوسرا ایسا مالک ہے جس کے پاس جا ہے, اس کے اوپر کسی کا پریشر نہیں بنتا, کوئی اس کے اوپر پریشر نہیں بنا سکتا. اس کی بیوی ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی پریشر بنا سکے. جی انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ, اس کی بیوی ہے ہی نہیں, کون پریشر بنائے گا اس کے اوپر. اچھا تو اب دیکھو ملکیت ہے, مالک ہے, وہ مالک کے ساتھ ساتھ دبدبا ہے, کوئی اس کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتا. لیکن ایک اور چیز کی ضرورت ہے, کیا, علم ہونا چاہیے. اس لیے کہ آدمی کے پاس ملکیت ہو, اس کی پوری حکومت ہو اور حکومت کے ساتھ دبدبا بھی ہو, لیکن اگر علم نہ ہو کہ فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے, جی فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے, کس اسٹیٹ کے اندر کیا چل رہا ہے, ما یدور فی مملکتہ, اس کی مملکت کے اندر کیا چل رہا ہے, علم ہونا چاہیے ایک بادشاہ کو. جی جو چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں, ایک کمپنی کا مالک ہو, گھر میں بیٹھا رہے خالی, اس کو معلوم نہ ہو, علم نہ ہو کہ کیا چل رہا ہے اس کی کمپنی کے اندر, کمپنی ڈوب جائے گی. جی تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ما یدور فی مملکتہ, کہ اس کی مملکت کے اندر کیا چل رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے میں اس پوری کائنات کا مالک ہوں اور میں جانتا ہوں کہ کہاں کیا چل رہا ہے. کون لوگ ہیں جو مجھے چھوڑ کر دوسروں کو سجدہ کرتے, مجھے معلوم ہے. کون ہے جو میری ملکیت میں ہیں, میری کھاتے ہیں اور گاتے کسی اور کا ہیں. جی ہم کو معلوم ہے کہاں کیا چل رہا ہے, ہماری پوری نگاہ ان کے اوپر ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ میری نگاہوں کے سامنے ہے, یہ علم ہے. تو ملکیت کے لیے ضروری ہے جا ہو, کوئی دبدبا اس کے اوپر نہ ڈال سکے, اتنا اس کے پاس دبدبا. اور تیسرے دبدبے کے ساتھ ساتھ علم ہونا چاہیے. اچھا علم کتنا ہونا چاہیے, علم کامل ہونا چاہیے, علم تام مکمل علم ہونا چاہیے. جی علم ناقص نہیں چلتا ہو. اگر اس کے پاس ناقص علم ہے تو پھر کہیں بھی فساد ہو سکتا ہے. علم کامل ہونا چاہیے. اللہ فرما رہا ہے میرے پاس علم کامل ہے, فرما رہا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ حاضر کو بھی جانتا ہے, ماضی کو بھی جانتا ہے, مستقبل کو بھی جانتا ہے. کیا ہوا
उसका भी इल्म हमें है, क्या हो रहा है उसका भी इल्म हमें है, और क्या होने वाला है इसका भी इल्म हमें है। हम माजी, हाल, मुस्तकबिल तीनों जमानों के ऊपर निगाह रखे हुए हैं, तीनों जमानों के ऊपर हमारी निगाह है। अल्लाह, इसको कहते हैं इल्म कामिल। अच्छा, अब सवाल पैदा हुआ कि इंसानों के पास भी तो इल्म है। अल्लाह फरमा रहा है दो चीजें हैं, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। एक तो जो कुछ इल्म मिला है लोगों को वो अल्लाह की मशीयत से मिला है जी, एक हमारी देन है वो जो मिला है, अल्लाह की मशीयत, बिमा शा, अल्लाह की मशीयत। और दूसरे जो इल्म मिला है थोड़ा मिला है जी, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला के बाद नकरा लाया गया, और नकरा तहतन नफी तो उमूम का फायदा देता है। इल्म थोड़ा है। अभी देखो एक डॉक्टर को देखो, कह रहे हैं कौन है ये, बोले आई स्पेशलिस्ट है। अच्छा जरा देखिए मेरी आंख में क्या है, देखा, चेक किया, नहीं समझ में आ रहा है, फिर वो बड़े डॉक्टर को रिफर करता है। फिर जब बड़ा डॉक्टर भी हथियार डाल देता है तो कहता है अमेरिका ले जाओ, और अमेरिका पहुंचते पहुंचते अमेरिका का डॉक्टर बोलता भी नहीं चली गई है? आंख के अंदर जो कुव्वत थी दोबारा ले आना है? एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जिंदगी भर उसके ऊपर उसका रिसर्च करता है, लेकिन कभी कभी पैर काटना पड़ता है। वाई, क्यों? इसलिए कि उसके पास इल्म ताम नहीं है, इल्म नाकिस है जी। इसी वजह से एहाते का लफ्ज़ है, वला युहीतून बिशै। इल्म जो दिया गया है, इल्म के लिए एहाता होना चाहिए, इल्म घेरे हुए हो उसको। जब इल्म एहाता किए रहेगा तब आप गलती नहीं कर सकते, और इल्म अगर एहाता न किए हुए हो, घेरे हुए ना हो, तो नाकिस इल्म है। तो अल्लाह फरमा रहा है एक तो मेरी देन है चार किताबें पढ़ करके अल्लाह का इनकार करते बैठे, बोलो अहमक लोग। थोड़ा सा इल्म मिल गया है, चार किताबें साइंसदानों ने पढ़ ली तो अल्लाह का इनकार करते बैठ गए। अल्लाह फरमा रहा है जितना इल्म तुम्हें दिया गया है वो मेरी मशीयत से दिया गया है, मैंने चाहा तो मिला है, और जो तुम्हें इल्म दिया गया है मामूली इल्म तुमको दिया गया है। कौन तुम, तुम्हारी औकात क्या है? अल्लाह फरमाता है इल्म जो तुम्हारे पास है मेरी देन है, और दूसरे जो कुछ मिला है बहुत थोड़ा तुम्हें मिला है जी। इल्म किसको कहते हैं ये तुम्हें मालूम ही नहीं है। व्हाट इज नॉलेज? यू डोंट नो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जानते इल्म क्या है, इसलिए कि तुम्हारे पास इल्म है, इल्म नाक़िस है। तो पहले अल्लाह ने फरमाया मेरा इल्म इल्म कामिल, और दुनिया वालों के पास जो इल्म है उनके पास इल्म नाक़िस है जी। अब जाहिर है कि जिसके पास इल्म नाक़िस हो वो आपकी क्या हाजत पूरी कर सकता है जी, आपकी क्या हाजत पूरी कर सकता है जी। उसके बाद मिल्क का तस्करा तो वह मालिक है, आगे मुल्क का तस्करा किया जा रहा है। मिल्क होता है ना इस शेख में, अंत तमलिकु शैयन, किसी चीज के आप मालिक हैं, लेकिन मुल्क किसे कहते हैं, मलिक किसे कहते हैं? अंत तमलिक मैं अमलिक, आप मालिक हूं उसके जो मालिक है, यानी मालिक का मालिक अगर हो तो आप बादशाह हैं। ये बादशाहत कितनी बड़ी है, अल्लाह फरमा रहा है वसिया कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्द। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्नहु क़ाल अल कुर्सिय्यु मौज़िउ क़दमैनि, रवाहुल हाकिम फिल मुस्तदरक। इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने मुस्तदरक अल सहीहैन में इब्न अब्बास से रिवायत नकल की कि कुर्सी किसको बोलते हैं। बहुत गौर से है, बहुत गौर से, तौहीद का बयान चल रहा है। ये कदम अल्लाह जहां रखता है, अल्लाह जहां कदम रखता है, अच्छा कहा गया मौज़िउ क़दमैन, पता है चला कि उसके दो पैर हैं, उसके दो पैर हैं, कैसे है मालूम नहीं, कैफियत मजहूल है। तो कुर्सी जो है ये अल्लाह तबारक व तआला के दोनों कदमों के रखने की जगह है। अच्छा ये कुर्सी कितनी बड़ी है? कुर्सी इतनी बड़ी है कि जमीन और आसमान सबको घेरे हुए है। अल्लाह, और अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है और कुर्सी उसके सामने है। कुर्सी कहां है कोई पूछे तो बिल्कुल अर्श के सामने है, बैना यदैल अर्श, अर्श के बिल्कुल सामने है। भाई कुर्सी कहां है? अर्श के बिल्कुल सामने है, और अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, और यह कुर्सी उसके दोनों कदमों के रखने की जगह है। तो ये अर्श के सामने है, ये कितनी बड़ी है? खाली कुर्सी जमीन और आसमान को घेरे हुए है, और ये कुर्सी कितनी बड़ी है अर्श के मुकाबले में? अल अर्श अकबर मिनल कुर्सी, अर्श कुर्सी से बड़ा है। कितना बड़ा है? इतना बड़ा है कि एक पूरा जंगल हो उसमें कोई एक छल्ला डाल दे, छल्ला कितना छोटा होता है, जंगल कितना बड़ा है। अल्लाहु अकबर, एक जंगल के मुकाबले में एक छल्ले की क्या औकात है। अल्लाहु अकबर। तो कुर्सी
जो पूरी कायनात को घेरे हुए है, वो अर्श के मुकाबले में इतनी छोटी है जैसे जंगल के मुकाबले में एक अंगूठी, एक छल्ला। तो अर्श कितना बड़ा होगा। ला यअलमु क़द्रहु इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई नहीं बता सकता कि उसका अर्श कितना बड़ा है। तो कुर्सी इतनी अजीम है जो कायनात को घेरे हुए, और उससे बड़ा उसका अर्श है, अर्श अजीम है। तो जो उस पर मुस्तवी है वो किस कदर अजीम होगा जी। इसी वजह से इस सूरह करीमा का इख्तिताम इसी सिफत के साथ है, वहुवल अलीयुल अज़ीम। आयत करीमा खत्म। कुर्सी इतनी अजीम है कि पूरी कायनात को घेरे हुए, और यह कुर्सी अर्श के मुकाबले में इतनी छोटी है जैसे जंगल के मुकाबले में एक अंगूठी जी। और जो अर्श पर मुस्तवी है वो किस कदर अजीम होगा। रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, हमारा रब इतना अजीम शान है। उसको छोड़ करके अगर कोई किसी के पास मांगने जाए, इसका मतलब मा कदरुल्लाह का कदरी, अल्लाह तबारक व तआला की कदर ही नहीं समझी उसने। और आयतुल कुर्सी में अल्लाह तबारक व तआला की अजमत को समझाया गया कि वो क्या है जी जी जी। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़। कुर्सी का लफ्ज एक जगह और आया है जी, हजरत सुलेमान के लिए। बस अला कुर्सीही जसदन, उनकी कुर्सी के ऊपर हमने एक बदन डाल दिया, एक लाश डाल दी, बच्चे की या किसी की। तो कुर्सी का लफ्ज हजरत सुलेमान के लिए आया है। और कौन थे सुलेमान बताओ? कोई आम आदमी थे? बादशाह थे जी। तो बादशाह के लिए जो कुर्सी होती है ना, कुर्सी, अल्लाह तबारक व तआला मलिक है, वो उसके लिए कुर्सी है। इन लोगों की कुर्सी तो छोटी मोटी होती है, तख्त छोटा मोटा होता है, और उसकी कुर्सी ऐसे जहां वो पैर मौज़े कदमैन, दोनों कदमों के रखने की जगह इतनी बड़ी है कि पूरी कायनात को घेरे। उससे बड़ा अर्श, अर्श कितना बड़ा है। ला यअलमु क़द्रहु इल्लल्लाह, ला यअलमु क़द्रहु इल्लल्लाह। और जो उस पर मुस्तवी है वो कितना अज़ीमुश्शान है, ये बताया गया। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, उसकी कुर्सी आसमान और जमीन को घेरे हुए है, घेरे हुए जी। अच्छा, इतनी बड़ी कायनात है, इतनी बड़ी कायनात है, क्या उसको संभालने में उसे तकलीफ हो रही है? लफ्ज कैसे इस्तेमाल किया गया देखो, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, उसकी हिफाजत उसके ऊपर भारी नहीं है। आदमी एक घर की हिफाजत नहीं कर सकता। बच्चा कहां जा रहा है, बच्ची कहां जा रही है, खुद कहां जा रहे हो पता नहीं। पूरी कायनात का जर्रा जर्रा उसकी निगाहों के सामने है और भारी नहीं है उसके ऊपर। ला यऊदुहु ए ला युस्किलुहु जी। औद का मतलब समझते हैं? औद का वला यऊद, औद का मतलब होता है कोई चीज सीधी हो, ऐसे 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 कोई चीज सीधी हो और उसके बाद ऐसे झुका दी जाए, ऐसे 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 झुका दी जाए, इसको कहते हैं औद। औद, औद माने झुकना। जैसे होता है ना, बाज मर्तबा कोई शरीर लड़का मकतब में होता है तो उस्ताद क्या करता है, इधर आ, चल मुर्गा बन जा। अब उसे मुर्गा बना देते हैं, एक सीधी चीज टेढ़ी हो गई, उसके ऊपर 2-3 ईंटें रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड औद। तो किसी के ऊपर बोझ लाद दिया जाए तो झुक जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला इतनी बड़ी कायनात का बादशाह है, क्या उसकी